Now we are going to learn our fifth chapter in EVS. So our fifth chapter is understanding time. Okay. Now we will learn about understanding time. Okay. So before start our lesson, first we will read the dictation of this lesson. Okay. So let's read the dictation. Children, you need to read after me. Okay. आपको मेरे जैसे मैं रीडिंग करूंगी डिक्टेशन वर्ड्स, उसकी हर एक स्पेलिंग जो है आपको मेरे बाद रीडिंग करनी है एटलीस्ट 2 टाइम. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. PAST पास्ट, PAST पास्ट. देन PRESENT प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट. देन FUTURE future, FUTURE future. TODAY today, TODAY today. लिखने की जो जल्दबाजी हो बिल्कुल भी ना करें. पहले हमें क्या करना है, रीडिंग करना है. फर्स्ट यू नीड टू रीड ऑल डिक्टेशन एंड देन वुड यू राइट. ओके. आपको उसके बाद राइटिंग करना है. सो बिल्कुल भी घाई गड़बड़ जल्दबाजी ना करें लिखने की. पहले हम रीडिंग करेंगे देन विल राइट. ओके. नाउ फिफ्थ, TOMORROW tomorrow, TOMORROW tomorrow. Then YESTERDAY yesterday, YESTER yesterday. Next CALENDAR calendar, CALENDAR calendar. Next SCATUE statue, SCATUE statue. Then SHARDS shard, SHARDS shard. POTTERY pottery, POTTERY pottery. Next COINS coins, COINS coins. Next FOUNDATION foundation, FOUNDATION foundation. Next SECONDS second, SECONDS second. Next MINUTES minutes, MINUTES minutes. FORT fort, NIGHT night, fortnight. Okay. FORT NIGHT fortnight. Then MEASURE measure, MEASURE measure. Next INSTRUMENTS instruments, INSTRU instruments, MENTS instruments. 18 WATER water, CLOCK clock, water clock. WATER water, CLOCK clock, water clock. HOURR GLASS glass, hourglass. HOUR hour, R. Okay. GLASS glass, hourglass. UNDER under, STAND stand, understand. UNDER under, STAND stand, understand. Okay. Now we have read all these 20 dictations. Yes, of course you need to write them in your homework. Learn and write 2 times. Okay. Dictations. आपको लर्न भी करना है. Why? Because it would ask you in your oral. Okay. It would be asked in your oral. आपको ओरल में ये सारे जो डिक्टेशन है वो पूछे जाएंगे, उनकी स्पेलिंग तो लर्न करके हमें लिखना है. Okay. So after reading the dictation, now we will start our chapter number 5, understanding time. Okay. Okay. So children, let's begin our chapter number 5, understanding time. Okay.
So time has three parts. Time has three parts: past, future, and present. Okay. Now, what is the past, future, and present? So what has gone by is the past. Gone by is the past. That means जो पीरियड या जो वक्त बीत चुका है ना, जो निघून गेलाय, ती वेळ पूर्ण झालेली आहे, बीत चुका है, उसे कहते हैं पास्ट. PAST, पास्ट. एंड व्हाट इज गोइंग नाउ इज द प्रेजेंट. व्हाट इज गोइंग नाउ, दैट मीन्स अब जो चल रहा है ना, प्रेजेंटली अब जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट. गोइंग ऑन नाउ, जो अब गोइंग ऑन नाउ इज प्रेजेंट. PRESENT, प्रेजेंट. ठीक है. एंड व्हाट इज येट टू कम इज द फ्यूचर. येट टू कम यानी वो वक्त अभी आने वाला है, आया नहीं है, जो आने वाला है. येट टू कम इज फ्यूचर. FUTURE, फ्यूचर. ओके. द थ्री पार्ट्स ऑफ टाइम: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. ओके. नाउ टुडे इज मंडे and the word today shows the present time. Yes, today is Monday. आज क्या है? Monday है. That means the word today क्या शो कर रहा है हमें? Present. Okay, present. Present time. Tomorrow is my birthday. The word tomorrow shows the future. Tomorrow is my birthday. यानी कल क्या है? Tomorrow means a day after. कल मेरा बर्थडे है, यानी अभी तक वो दिन आया नहीं है, आने वाला है. यानी टुमारो शोज द टाइम ऑफ फ्यूचर. ओके, फ्यूचर आने वाला है. नेक्स्ट, yesterday granny told me a story. Yesterday, that means a day before. आज से पहले, कल के दिन. ओके. Granny told me a story. ग्रैनी यानी दादी माँ. दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई थी. ओके. दैट मीन्स अ वर्ड yesterday shows the past time. Which time? Past time. यानी जो बीत चुका है वो हमें past शो करता है. ओके. टाइम ऑफ पास्ट. टाइम कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग मीन्स सच एज कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल, एक्सेट्रा. यस. मीन्स ऑफ टाइम: कैलेंडर, स्कूल टाइम टेबल. See, now we all have calendars in our house. Okay, हम सबके घर में कैलेंडर जो है पाए जाते हैं. एंड सॉरी, हम जो है हमेशा अगर हम देखेंगे कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, हर एक इंसान जो होता है, वो टाइम के हिसाब से चलता है ना. दैट मीन्स उसका पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है वो टाइम के हिसाब से ही सेट हुआ रहता है. दैट मीन्स what will he do in morning, then what will he do afternoon, then evening, and where he will sleep, at which time he will sleep. ये सारी जो बातें हैं हमने टाइम के हिसाब से सेट करके रखी है ना. अगर आप देखोगे इन अवर स्कूल टाइम, आपकी कितनी भागदौड़ होती है ना. आपको हर काम जो है वो बिल्कुल टाइम के हिसाब से करना पड़ता है, टाइम टू टाइम चलना पड़ता है. कितने बजे आपको उठना है, देन वेयर विल यू टेक योर ब्रेकफास्ट, देन गो टू स्कूल, है ना. एंड whenever you come from school, what will you do? Half and 1 hour maybe you play, है ना, आप खेलोगे. देन डू योर होमवर्क, आप स्टडी करोगे, कुछ आपका होमवर्क होगा. देन आपका डिनर करोगे, और फिर कौन से टाइम पे आपको सोना ही है, वो टाइम आपका सेट है ना. इस हिसाब से आपका जो होल टाइम जो रहता है दिन का, वो शेड्यूल के हिसाब से सेट हुआ रहता है ना. हर एक इंसान का, हर एक जो भी पर्टिकुलर जिनका वर्किंग वुमन हो या वर्किंग मैन हो, वो किस हिसाब से अपने दिनचर्या जो है, शेड्यूल जो है, वो सेट करके रखता है. नाउ और उनका वो हर एक पर्सन का अपना खुद का एक टाइम टेबल होता है. नाउ वन मोर, स्कूल टाइम टेबल. अगर आप देखोगे, आपके स्कूल में हर एक स्टैंडर्ड को एक टाइम टेबल दिया जाता है ना. बिल्कुल उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपका जो स्कूल पीरियड जो होता है, दैट मीन्स 12 to 5 या मॉर्निंग 7 to 12,
वो सेट किया होता है ना। आपका जो रिसेस होती है वो कब होगी, एंड बिफोर रिसेस आपके कितने पीरियड्स होंगे, वो कितने मिनट्स के होंगे, देन आफ्टर रिसेस आपके कितने पीरियड्स होंगे, कौन से पीरियड्स होंगे। देन टाइम टेबल के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि विच पीरियड येट टू कम, यानी कौन सा पीरियड नेक्स्ट पीरियड होगा, विच सब्जेक्ट, एंड विच पीरियड्स गॉन बाय, कौन से पीरियड्स जो है वो चले गए हैं। ये सारी बातें जो है वो स्कूल टाइम टेबल के हिसाब से आप सबको पता होती है ना, और उसी को आप फॉलो करते हो। ओके, नाउ सी कैलेंडर, यस, फॉर विच पर्पजेस डू वी यूज कैलेंडर। अगर आप देखोगे कि हम कौन से पर्पजेस के लिए कैलेंडर यूज करते हैं, टू नो द डे, डेट्स है ना, एंड टू नो द डेट ऑफ मेन फेस्टिवल्स लाइक गणेश चतुर्थी, दिवाली, टू नो द एग्जैक्ट डे ऑफ जो मेन डेट्स होते हैं लाइक 1 जनवरी, 15 अगस्त, ओके, इन सब, आवर बर्थडे है ना, कौन से डे पे होने वाला है, ये सारी बातों की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम कैलेंडर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नाउ when and why do we turn the pages of calendar, when and why, see now September month is going on है ना। अब कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर। आफ्टर सितंबर मतलब completing this month we turn our page of calendar। सितंबर जब कंप्लीट होगा we turn our page of calendar, हम कैलेंडर का जो पेज है वो टर्न करेंगे टू सी what is a next month and which main days and dates जो है उसे देखने के लिए या जानने के लिए कि which festivals yet to come, कौन से फेस्टिवल आने वाले हैं, to know the main days like in August have, sorry October have, after September there is a month of October। okay, तो इन सब बातों के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो पेजेस है कैलेंडर्स के उन्हें टर्न करते हैं। ओके, आ रहा है समझ में आपको, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, नाउ सी, डू यू नो स्टैचू, कॉइन एंड शार्ट्स ऑफ पॉटरी। सी, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। यस, हिस्ट्री जानने के लिए या उसे समझने के लिए हमें टाइम की जो टाइम को समझना और उसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे, चलिए देखते हैं। समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन्स एंड शार्ट्स ऑफ पॉटरी एक्सेट्रा आर फाउंड while digging the foundation of building। ओके, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। अगर हम देखेंगे कि इफ सपोज कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, ओके, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो while the digging the foundation of building, यानी उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले डिगिंग यानी जमीन के अंदर तक, डिगिंग यानी खुदाई करनी पड़ती है ना, डिग करना पड़ता है जमीन के अंदर, बहुत ही मतलब अंडरग्राउंड जो है डिगिंग करनी पड़ती है हमें, तब जाके बिल्डिंग का जो बेस होता है वो मजबूत बन जाता है ना, उस तरीके से। सो while digging we found different types of statues, coins, shards of pottery. These things are studied carefully. Through these studies we come to know about the period of time to which they belong। yes, that means कई बार क्या होता है, ऐसे डिगिंग के वक्त हमें बहुत सारी जो एंशियंट पीरियड के जो चीजें होती है, थिंग्स होती है, लाइक कॉइन्स हो, स्टैचूज हो, वो मिल जाती है, वो पाई जाती है। फिर उन चीजों का स्टडी किया जाता है। दैट मीन्स कि ये जो स्टैचू है या कॉइन है ये किस जमाने का है या कितने साल पुराना है। ओके, इन सब बातों का पता लगाया जाता है। दैट मीन्स मिड टाइम, एंशियंट टाइम, जैसे उस वक्त किन महाराजाओं का या फिर किन जो लेजेंड्स हमारे हैं उनका जो दौर है वो चल रहा होता है, ये सब बातों की जो स्टडी है वो की जाती है। मेनी टाइम ऐसे भी होता है कि
डिगिंग के वक्त कई बार हमें जो होल, अगर वो विलेज है, वो विलेज भी पाया जाता है। एंशिएंट टाइम्स के जो विलेजेस होते हैं, उनके जो मतलब घर होते हैं, वो पूरी की पूरी तरह जो है जमीन के अंदर गड़ जाते हैं, वो हमें डिगिंग के वक्त मिल जाते हैं। लाइक अगर आप देखोगे कि अब आज के वक्त में भी कई ऐसी जगहों पे अगर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, लाइक फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग हो या समथिंग एल्स, और कोई टेम्पल वगैरह बन रहा हो, तो कई ऐसी जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हमारे हमें मिल जाती है, लाइक स्टैच्यूज ऑफ गॉड, गॉडेस, है ना, भगवान की जो मूर्तियां है वो पाई जाती है, कॉइन्स पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है, सोने के सिक्के हो या फिर शार्ड्स ऑफ पॉटरी, यानी पुराने जमाने के जो बर्तन थे, है ना, पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, तो वो सारी चीजें भी आज भी हमें जमीन के अंदर मिल जाती है। कई बार जो टेम्पल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, कि फिर उन पे स्टडी करके पता लगाया जाता है कि वो कौन से जमाने का हो सकता है, और यानी उसकी जो पूरी तरह से उस पर रिसर्च किया जाता है। ओके, थ्रू दिस स्टडीज वी केम टू नो अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम, यानी उससे हमें टाइम का पता लग जाता है कि ये लाइक वी आर लिविंग इन 20th सेंचुरी। ओके, आज हम 20वीं सदी में चल रहे हैं। सो विच पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो जो कॉइन्स है, स्टैचूज है, वो कौन से पीरियड के हैं, लाइक 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, है ना, कब मतलब और कौन सा यानी कि विच टाइप ऑफ ट्रेडिशन और कल्चर मतलब लोग जो पीपल जो है वो फॉलो करते थे, ये सारी बातों की जानकारी हमें इन चीजों से मिल जाती है। इंटरेस्टिंग है ना बच्चों? ओके, नाउ use your brain power. See, today's newspaper becomes old tomorrow. Yes, obviously today's newspaper becomes old tomorrow. अगर हम आज का पेपर कल देखेंगे तो वो हमारे लिए पुराना हो चुका होता है ना, becomes old tomorrow. But if we cannot remember a particular fact, we search through old newspaper to find the information we need. Yes. बट इफ वी कैन नॉट रिमेम्बर, अगर कुछ ऐसी बातें हो जो हमें याद नहीं आ रही हो, और यानी सी वी हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी न्यूज़पेपर। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखोगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, ये सारी जो न्यूज होती है, जानकारी होती है, हमें मिल जाती है ना। बट समटाइम्स वी कैन नॉट रिमेम्बर अ पर्टिकुलर फैक्ट, हमें याद नहीं आता है कि वो जो चीज या जो घटना थी, है ना, वो जो फैक्ट था वो कब हुआ था, उस कौन सा दैट मीन्स किस वजह से हुआ था, ये सारी बातें हमें याद नहीं आती है। देन वी सर्च थ्रू ओल्ड न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वो सर्च करना शुरू कर देते हैं, वो न्यूज़पेपर छानना शुरू कर देते हैं। देन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन वी नीड, जिन इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है, हम जानना चाहते हैं, उसे फाइंड करना यानी ढूंढना हम शुरू कर देते हैं। दिस मीन्स दैट टूडेज न्यूज़पेपर विल टुमारो बिकम एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ गेटिंग टू नो हिस्ट्री। यस, यानी हिस्ट्री जानने के लिए जो पहले बीत चुका है, जो बातें पहले हो चुकी है, उन्हें जानने के लिए भी हमें आज के न्यूज़पेपर की कल क्या मतलब नीड लगेगी, यानी जरूरत पड़ सकती है, उसे ही टाइम कहा जाता है। यानी देखो आप, अगर आप देखोगे कि वक्त का किस तरह से यूज होता है ना, और पता लगाया जाता है। आ रहा है आपको समझ में? ओके, जैसे देखो आपको भी कई बार स्कूल में जो है एक्टिविटीज दी जाती है ना, बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल एम्पेरर्स लाइक, और या फिर कोई टेम्पल्स हो, तब भी आप देखो ये सारे जो पुराने न्यूज़पेपर हो या पुराने जो चीजें हो, उसे फाइंड करना, सर्च करना शुरू कर देते हो, है ना। क्यों? उसे आज के लिए हमें क्या करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसे फाइंड करना। सो हम हिस्ट्री पे क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं उस वक्त पे। ओके,
नाउ सी, कैन यू टेल हाउ डू वी मेजर टाइम? कैन यू टेल, क्या बता सकते हो कि हम टाइम को किस तरह से मेजर करते हैं? सो सी, टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइडेड इनटू सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे एंड नाइट, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर. In this way, time can be measured. Yes, we all know. We all uses calendar. Okay, and we all know 7 days make a week. Then 30 or 31 days make a month. Then 12 months or 365 days make a year. Okay, ये सारे जो बातें हैं वो टाइम को शो करते हैं. ओके, यानी टाइम को समझने के लिए हम इन सब बातों को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. नाउ इन अ डे वी हैव 12 hours make a day. Okay, 12 hours make a day. And see, 1 hour that means 60 minutes. Okay, and 60 seconds make 1 minute. Okay, so ये जो डिवाइडेड पार्ट्स है लाइक टाइम के, इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, यानी मेजरिंग करते हैं टाइम के लिए. बट वाटर क्लॉक्स एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग टाइम. यस, वाटर क्लॉक वी ऑल हैविंग क्लॉक्स इन अवर हाउसेस. ओके, हमारे सबके घर में जो है क्लॉक्स पाए जाते हैं, जिसके जरिए हम हमारा पूरा जो दिनचर्या जो होती है, हमारा जो शेड्यूल होता है उसे सेट करते हैं. एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मेजरिंग टाइम. ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये मेजर को टाइम को दर्शाते हैं. ओके, टाइम को क्या करते हैं? मेजर करते हैं, यानी नापते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर अंडरस्टूड अबाउट calendar, now next is water clock. Okay, what is a water clock? So water clock is one of the oldest instrument to measuring time. Okay, अगर आप देखोगे पहले के जो एंशियंट टाइम हो या मिड टाइम हो, उस वक्त टाइम को मेजर करने के लिए वाटर क्लॉक का यूज किया जाता था. बट देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर क्लॉक. वाटर क्लॉक जो होते थे वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते थे. मीन्स द वाटर इज फिलिंग अप द कंटेनर और वेसल. ओके, मार्क कंटेनर और वेसल वेयर वाटर मीट्स अ लाइन एंड टेल हाउ मच टाइम हैज पास्ड. यस, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो वेजल्स होते थे या कंटेनर्स होते थे उन्हें यूज किया जाता था मार्क विद अ मार्क ऑफ लाइंस मार्क करके, और फिर उसे यानी मतलब जिस तरह से वो वाटर उसमें फिल होता था उस वेजल में या कंटेनर में, दैट मीन्स हाउ मच that tell us how much time has passed, यानी कितना टाइम उसमें बीत चुका है. इस तरह से टाइम को क्या करते थे? मेजर किया जाता था. ओके, यू कैन सर्च द वाटर क्लॉक ऑन गूगल, और ओके आप सर्च करके देख सकते हो कि कितने अलग अलग टाइप्स के जो वाटर क्लॉक हुआ करते थे और उन्हें यूज किस तरह से किया जाता था. ओके, नेक्स्ट एन आवर ग्लास. सी, डू यू नो इन द 14th century, okay, now we are living in 20th century. So maybe about 600 years ago. Okay, 600 years ago. That means in the 14th century, the hourglass came into use in Europe. Oh, ये जो hourglass है वो यूरोप में यूज किया जाता था. ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, in consisted of two connected glass vessels fitted in wooden frame. सेम एक वुडन फ्रेम हुआ करती थी, उस वुडन फ्रेम में 2 ग्लासेस जो है वो कनेक्ट किए जाते थे. ओके, ड्राई फाइन सैंड वॉज poured into one of the vessel. 2 glasses, that means one vessel, एक जो कांच का बर्तन होता था, ग्लास होता था, उसमें अ फाइन सैंड यानी एक रेत जिसे हम कहते हैं, है ना, वायु जल आपण म्हणतो,
फाइन सैंड वॉज poured into one of the vessel. poured यानी उसमें डाला जाता था. The connecting hole between a vessel allow a sand into top vessel to fall into the lower vessel. Yes, उसमें एक फाइन होल हुआ करता था. ओके, दैट मीन्स अगर आप देखोगे, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, you can see on page number 31. Okay, a connecting hole between two vessels allowed the sand into the top vessel fall into a lower vessel. यानी top vessel यानी ऊपर का जो कांच का बर्तन होता था उसमें से किस वो फाइन सैंड जो है वो किस तरीके से लोअर वेजल यानी जो निचला हिस्सा जो होता है उसमें फिल होता था. ओके, गिर जाता था. टू फॉल इनटू द लोअर वेजल. द आवर ग्लास वाज द कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट इट टुक 1 hour फॉर ऑल द सैंड फॉल फ्रॉम वन वेजल इनटू द अदर. यानी वन वेजल इनटू द अदर वेजल. द फॉलिंग जो पीरियड होता था फॉलिंग का, सैंड का जो गिरना होता था वो बिल्कुल 1 hour के मेजर में फिट किया होता था या उसे नापा जाता था उस वक्त पे. ओके, उसे 1 hour के मेजरमेंट से रखा जाता था या डाला जाता था. क्लॉक वॉज टर्न ओवर एज सून एज ऑल द सैंड हैड फॉलन इनटू लोअर वेजल. यस, जिस तरह से वो जो लोअर वेजल में पूरी तरीके से सैंड फिल होता था, देन उस जो क्लॉक होता था या फिर जो वेजल होता था उसे टर्न किया जाता था. ओके, दैट मीन्स नेक्स्ट आवर अगले टाइम के लिए उसे फिर से सेट किया जाता था. दिस इज हाउ अ पीरियड ऑफ 1 hour वॉज मेजर्ड. दिस क्लॉक्स वर यूज इन इंडिया टू. फिर उसके बाद बिल्कुल उसी तरीके से हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में भी उसे यूज करने लगे. ओके, 1 hour टाइमिंग के मेजर से उसे मेजर करने के लिए उसका यूज किया जाता था. ओके, नाउ सी, ट्राई दिस. टेक अ फोटोग्राफ्स ऑफ yourself from the past, present and in the frame below. In the frame of the future, draw a picture of what you will look like the 20 years. See, यहाँ पे आपको 3 frames दिए गए हैं. I was like this when I was a baby. See, that means past. Past यानी जो बीत चुका है. आपका I was like this when यानी उस वक्त आप किस तरह से दिख रहे थे. when you was a baby, that means आप बिल्कुल एकदम बेबी की तरह छोटे थे. वो उस टाइम का, उस पीरियड का आपको यहाँ पर क्या करना है, जो फोटोग्राफ है उसे स्टिक करना होगा. ओके, देन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट. नाउ आई एम लाइक दिस. आप कैसे दिख रहे हो. नाउ आई एम लाइक दिस इन प्रेजेंट. ओके, अभी का यानी प्रेजेंट का जो आपका पिक होगा, पिक्चर होगा, फोटोग्राफ होगा, उसे आपको स्टिक करना है. एंड फ्यूचर. सी, आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 years. इमेजिनरी ड्रॉइंग. इमेजिनरी ड्रॉइंग यानी आप इमेजिन करके भी आपका जो पिक्चर होगा, पेंट होगा इन फ्यूचर, दैट मीन्स आफ्टर 20 years. आप चाहे तो एम्प्टी रख के बाद में भी उसे स्टिक कर सकते हो, अदरवाइज इमेजिन करके भी आप यहाँ पर स्टिक कर सकते हो. उसका कहने का एक जो तात्पर्य क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उस टाइम के बारे में हमें जानना है और हमें इमेजिन करना है. ओके, बस यही है कि सो होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन, अंडरस्टैंडिंग टाइम. ओके चिल्ड्रन, यू मस्ट रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, केयरफुली. अब हमें जो डिक्टेशन थे वो अच्छी तरीके से हमने रीड किए हैं. बिल्कुल उसी बेस पे हम होल चैप्टर जो है उसे भी रीडिंग कर सकते हैं. और यस, अगर आप लेसन रीडिंग करोगे तो हो सकता है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो और अच्छी तरीके से समझ में आए. ओके, सो इट मस्ट बी रीड. आप इसे जरूर रीड कीजिएगा. देन yes, I will give you question answers from this chapter. Okay children, so let's know and write our first question. Answer the following question. Okay, and our question is, which instruments are used for measuring time?
टाइम को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? सो इंस्ट्रूमेंट such as clocks, water clock, hourglass are used for measuring time. Okay. Next, our second question is, how do we divide time in order to understand it? How do we divide time? Time को हम किस तरह से divide करते हैं in order to understand it? उसे समझने के लिए. So we divide time into second, minute, hour, day and night, week, fortnight, month and year in order to understand it. Okay. उसे समझने के लिए हम इस तरह से टाइम को डिवाइड करते हैं. So there is only 2 question answers. Okay. Now okay, we will continue with our second question. Our next question is matchup. Okay. See, here I am giving you first column and directly write their answers. So first, what has gone by? Can you tell? Yes, you need to know this answer of question. What has gone by? What has gone by? Past. उसे क्या कहते हैं? Past. P-A-S-T. Past. Next, what is going on? What is going on? That means present, है ना? The time of present. P-R-E-S-E-N-T. Present. Okay. And what is yet to come? What is yet to come? जो आने वाला है, वो वक्त या वो समय अभी तक आया नहीं, आने वाला है. It's called future. Okay. F-U-T-U-R-E. Future. Remember this, students, and write down the question answer of this chapter. And yes, after writing, send the pics as a homework. Okay. होमवर्क के तौर पर आपको ये जितना भी राइटिंग वर्क आपने किया है उसे सेंड करना है. ओके.